welcome all. Welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CBSE 10th grader and today's video is going to be an 8-hour study challenge. मैंने last week बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है and my pre-board exams are super close, like they are in like less than a month almost now, and that is why I need to actually like study a lot and I'm not doing that right now. And मेरा syllabus अभी तक complete नहीं हुआ है and it's literally like what 7th October today and अभी तक मेरा syllabus complete नहीं हुआ है, which is not a good sign at all. So today like we'll be trying to complete our syllabus throughout this challenge. I'll tell you all how you can also study for long hours like in a single day without getting burnt out, and I'll also give you tips कि तुम अपना syllabus कैसे complete कर सकते हो, and we might also make a plan of how we're going to complete our syllabus further on this month, क्योंकि अक्टूबर में तो syllabus complete करना ही करना है, like that is a non-negotiable. Earlier I had to finish it like September end तक, but now it's October, so we're like lacking behind on that plan as well because of my midterms. So अब उनको complete करना is like that is a non-negotiable. मतलब September तक complete करना, okay, that is like ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, but अब उसको करना is very important. So we're going to be doing that and you can watch me torture myself for 8 hours. So without wasting any more time, let's get right into the video. So I wrote down my to-do list. It is not very hectic right now because मैंने जो भी chapters लिखे हैं मुझे पूरे नहीं करने हैं. Like I'm left with portions in these chapters, so it won't take me that long. But like this will complete my science syllabus to the max. Like उसके बाद सिर्फ एक chapter बचेगा, वो भी bio का. So that is like good. And like ये complete करने के बाद I might write another to-do list, but this is like just for now. But ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ ये करने में बहुत टाइम लग जाए, so let us see how it goes. But like this is like my non-negotiable tasks for today जो मुझे आज करना ही करना है. So yeah, let's start. Also guys, just so you know, आज मेरे स्कूल की छुट्टी है and अभी फ़िलहाल it is 10 AM almost. So like we have a bunch of time at hand right now, which is great. Anyways, now let us actually start studying, and उससे पहले हमें एक टाइमर भी लगाना होगा so that we know that we have studied for 8 hours. So I'll do that as well. तो यहाँ पर मैंने 8 hours का टाइमर लगा दिया है and I set it on this website called studywithme.io. उसके बाद मुझे सबसे पहले स्टैट्स पढ़ना था, तो मैंने अपनी बुक निकाली एंड मैं थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे को उसके आगे से करना है अब. सबसे पहले आई थॉट कि आई प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन माय ओन, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे फर्स्ट टॉपिक मम्मा ने कराया था बट अभी मम्मा घर पे नहीं थी, तो इसलिए आई थॉट कि खुद से पढ़ लेते हैं. जब मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया एंड मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, आई डोंट नो, आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम. आई डोंट नो मेरे को क्या दिक्कत है. अगर मैं कोई न्यू टॉपिक पढ़ रही होती हूँ मैथ्स का, आई नीड समवन टू टीच इट टू मी, लाइक एटलीस्ट एक बार. मतलब एक बार पढ़ने के बाद मुझे समझ आ जाता है, बट मतलब खुद से मुझे समझ नहीं आ रहा था. सो आई जस्ट गेव अप एंड आई डिसाइडेड टू वॉच ऋतिक सर का लेक्चर, एंड मैंने उनका पूरा लेक्चर देखा है अच्छे से. ये लेक्चर यूट्यूब पे है क्योंकि अभी तक उन्होंने हमारे पीडब्ल्यू के उड़ान बैच में इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया है, इसीलिए मैंने उनका यूट्यूब पे लेक्चर खोल के देखा. एंड वैसे तो ये 2 आवर्स का लेक्चर था, नॉट इवन 2 आवर्स, लाइक मोर देन 2 आवर्स, बट लाइक मैंने बीच में से स्टार्ट किया बिकॉज एक टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ. लाइक मीन मीडियन मोड में से मैंने मीन वाला टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे बाकी के 2 टॉपिक्स पढ़ने थे. तो साथ साथ मैंने आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे. सो नाउ आई एम डन विद स्टैट्स, एंड ये करने में मुझे लिटरली इतना ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब 2.5 आवर्स लग गए सिर्फ स्टैट्स कंप्लीट करने में. बट या हमने बहुत अच्छे से स्टैट्स कंप्लीट कर लिया है. मैंने आर डी शर्मा के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं एंड एनसीईआरटी के भी थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं. सो वी आर लाइक डन विद दिस टॉपिक एंड नाउ आई टेक अ ब्रेक. आई वॉज वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर थोड़ी देर क्योंकि मैथ्स करके मैं पक गई थी. ओके गाइज, तो अब मेरा ब्रेक खत्म हो चुका है एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट स्टडी सेशन. द नेक्स्ट थिंग ऑन माई टू डू लिस्ट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स. सो I'll watch मेरा PW का lecture पहले and I'll make my notes side by side, and after that if I feel like we'll practice some questions or like read it from the NCERT, क्योंकि मैंने अभी तक वो वाला पोर्शन NCERT से नहीं पढ़ा है. So yeah, let's do that. मेरा बायो में सिर्फ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला टॉपिक बचा था, so I was watching समृद्धि मैम का lecture to complete it. I always recommend कि तुम NCERT पढ़ने से पहले lecture देखो किसी भी टीचर का जिससे भी तुम्हें समझ आता हो,
एंड उसके बाद रीड द एनसीईआरटी, क्योंकि उसके बाद यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द टॉपिक्स, क्योंकि तुम लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो एंड तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होता है। एंड यू कुड डू वाइस वर्सा ऑल्सो, बट आई रिकमेंड पहले तुम लेक्चर देखो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। सो आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, मैं उनका लेक्चर देख रही थी एंड आई वॉज ऑल्सो मेकिंग माई नोट्स साइड बाय साइड, क्योंकि उससे मुझे बेटर लर्न होता है। आई बिलीव कि कोई लेक्चर देखते वक्त जब हम लिखते हैं देन हमारे मैक्सिमम सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक वी आर ऑल्सो लुकिंग एट इट, हम सुन भी रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, एंड आई ऑल्सो से इट आउट लाउड, सो दैट वे यू एबल टू लर्न इट बेटर एंड यू आर एबल टू लर्न इट फॉर लॉन्गर। सो या इसी तरीके से मैंने पूरा लेक्चर पढ़ा एंड मुझे बोर भी नहीं हुआ। मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, बट माई ब्रदर जस्ट गेव मी लंच, तो पहले हम लंच करेंगे एंड आई विल वॉच फ्रेंड्स व्हाइल आई ईट माई लंच एंड आई विल नॉट वॉच द लेक्चर, क्योंकि मुझे अपने नोट्स भी बनाने हैं। एंड लंच करने के बाद विल कंटिन्यू स्टडिंग, सो आई पॉज द टाइमर एंड विल हैव अ लंच। टाइमर पॉज कर दिया है मैंने एंड आई जस्ट रियलाइज दैट वीर हाफ वे देयर, सो ये दैट इज़ नाइस एंड नाउ आई जस्ट हैव माई लंच। खाना खाने के बाद आई कंटिन्यूड स्टडिंग एंड ओ माई गॉड दिस इज सच अ बिग चैप्टर, लाइक ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब मैं 3 दिन से इसे करने का ट्राई कर रही हूँ बट ये खत्म ही नहीं हो रहा है, बट आई थिंक फाइनली आज हम ये खत्म कर लेंगे। एंड ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड करना इन सब पोर्शंस, इट लाइक बर्न्स यू आउट अ लॉट लेस कंपेयर टू डूइंग द इंटायर चैप्टर इन वन गो। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा ही होता है। लेट मी नो इफ यू ऑल आर एबल टू डू बिग चैप्टर्स इन वन गो। एंड अब आई नीड टू फोकस ऑन बायो मोर एज वेल, क्योंकि मेरे मिड टर्म में बायो में ही सबसे ज्यादा मार्क्स कट हुए हैं एंड दैट इज व्हाई आई फील लाइक आई नीड टू वर्क ऑन बायो मोर। सो या वी विल डू दैट एज वेल, बट उससे पहले सिलेबस कंप्लीट होना इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरा बायो का टॉपिक अब जाके कंप्लीट किया है एंड मैंने सारे नोट्स भी बनाए हैं इसके लिए, बट अभी लिटरली 3 घंटे बचे हैं बस 8 आवर्स के चैलेंज कंप्लीट होने में। एंड मैंने अपनी टू डू लिस्ट के, कहाँ गई ये रही, मैंने अपनी टू डू लिस्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं। आई थॉट मैं 4 घंटे में सारे कर लूँगी, बट मैंने सिर्फ 2 कंप्लीट करे हैं। मतलब आई थॉट मैं 8 घंटे या 4 आवर्स में सारे कर लूँगी, बट इट्स बिन 5 आवर्स एंड मैंने सिर्फ 2 टॉपिक कंप्लीट करे हैं। एनीवेज अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। बिफोर आई स्टार्ट स्टडिंग आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक। सो मेरे को काफ़ी नींद आ रही है बट आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग, लाइक आई मीन मेरे को नींद आ रही है एंड अगर तुम्हें नींद आ रही है तो मैं सो जाना चाहिए, बट मैं क्या करूँगी, आई विल वॉश माई फेस विद एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर ताकि मेरी नींद उड़ जाए एंड सो दैट आई कैन कंटिन्यू स्टडिंग, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ पढ़ना है। सो या लेट्स डू दैट एंड yes. Now I'm done with washing my face and I feel a lot more fresh. And now I need to do chemistry and carbon and its compounds. मैंने half कर लिया है and which is like the most difficult part. So I'm already done with that. Now I need to do the second half, which is like chemical reactions वाला. So we'll do that and I'll watch अलग सर का lecture to do it. मैं आधा lecture already देख चुकी हूँ. I need to complete the other half of. तो आई वॉज वॉचिंग अलग सर का लेक्चर एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू कंप्लीट दिस, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। एंड ऑल्सो गाइज आई फील लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स इन केमिस्ट्री क्लास 10th कंपेयर टू दी अदर चैप्टर्स। सो मेक श्योर अगर तुम क्लास 10 में तुम इस चैप्टर को अच्छे से करो एंड गिव इट टाइम टू कंप्लीट इट। लाइक आई हैव ऑलरेडी स्पेंट 2 hours ऑन द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट अच्छे से, एंड आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट हाफ बिफोर आई मूव्ड टू द सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, which is the reactions वाला part. So it is very important to give yourself time to complete this, and अभी फिलहाल you have time, so make sure that you spend time on the long chapters to complete them properly, so that बाद में तुम्हें वापस मतलब starting से ना करना पड़े and वापस lectures ना देखने पड़े। And yeah, once again I was also making my notes while doing it. That helps me stay focused for longer. After that I just checked it off my to-do list and अभी तक सिर्फ 3 चीजें हुई हैं। We are done with maximum of the challenge and अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी पढ़ पढ़ के and I needed to get some fresh air. अभी बारिश हो रही थी, सो एवरीवेयर इज़ लाइक पूरा गीला हो रखा है एंड आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई एम गोइंग टू अनन्या's हाउस. आई एम श्योर यू ऑल हैव सीन हर इन माई अदर व्लॉग्स, सो या वी आर गोइंग टू हर हाउस नाउ. 2 घंटे नीचे टाइम पास करने के बाद मैं रात को ऊपर आई एंड आई हैड अ बनाना बिकॉज आई वाज हंग्री। एंड अब हमें नेक्स्ट चीज स्टार्ट करनी थी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड ये भी थोड़ा सा चैप्टर बचा था तो मैं अलग सर का लेक्चर देख रही थी समझने के लिए। एंड सरप्राइजिंगली मुझे ये वाला टॉपिक उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, स्पेशली द लास्ट पार्ट। आई थिंक दैट इज प्रॉबेबली बिकॉज आई जस्ट गॉट रियली टायर्ड एंड बोर्ड, क्योंकि मैं लेक्चर 2x में नहीं देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग इट इन 1.5x, सो इट टुक मी अ लॉट लॉन्गर टू कंप्लीट इट, क्योंकि
I wanted to understand it thoroughly because yeah, it's a difficult chapter also in my opinion. तो इसीलिए हम आराम आराम से देख रहे थे एंड एंड तक आते आते आई वाज रियली बोर्ड, सो मुझे लास्ट वाला पार्ट ढंग से समझ नहीं आया था. एंड अगर तुम लोगों के साथ ये चीज़ होती है देन मेक श्योर यू गो बैक टू दैट टॉपिक वंस अगेन, बिकॉज जस्ट लीविंग इट लाइक दैट एंड नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म. Also, I would like to say that Alak sir ke lectures are so fun and I am so grateful to have him as a teacher on YouTube क्योंकि इतना easily science समझ आ जाती है, इतने बड़े बड़े इतने difficult topics feel easy when I'm studying it from him. Anyways, सो मैंने पूरा लेक्चर देख लिया है एंड 1 hour 30 minutes के बाद हमारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा. आई हैव ऑल्सो मेड माई नोट्स बट मुझे लास्ट वाला पार्ट ढंग से समझ नहीं आया, सो आई विल लाइक रीड इट फ्रॉम द NCERT. ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा चैप्टर समझ नहीं आया है, बस लास्ट का एक टॉपिक आई डिड नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, सो आई वुड वांट टू रीड इट फ्रॉम द NCERT अगेन. एंड ये डोमेस्टिक सर्किट्स वाला टॉपिक है जो मुझे ढंग से समझ नहीं आया, सो नाउ आई एम जस्ट रीडिंग इट माई सेल्फ दैट आई कैन अंडरस्टैंड इट. एंड अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं खुद से पढ़ रही थी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, सो आई विल अंडरस्टैंड इट अपनी टीचर्स थे स्कूल में. उसके बाद मेरे को मम्मा वॉक कराने ले गई तो आई वेंट विद हर. ओके गाइस, तो मैं अभी डिनर करके आ चुकी हूँ, मैं अपनी मम्मा के साथ वॉक भी कर चुकी हूँ एंड शी जस्ट टोल्ड मी कि मेरे को अभी उनके हाथ पे मेहंदी लगानी है क्योंकि करवा चौथ है, सो अब वो करने में टाइम लगेगा एंड वी स्टिल हैव 1 more hour लेफ्ट टू कंप्लीट द चैलेंज. सो पहले मैं उनके हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि शी इज सेइंग दैट शी इज़ रियली स्लीपी एंड लाइक या, सो आई विल डू दैट पहले एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू स्टडीइंग. ओके गाइस, तो अब मैंने मम्मा को मेहंदी लगा दी है एंड उसी में मुझे लग गए 1 घंटे से ज़्यादा टाइम. मैं क्लिप्स डाल दूँगी कैसी लगी है मेहंदी. इतनी ख़राब मेहंदी लगाने के बाद मेरे हाथ पे भी लग गया. इतनी ख़राब मेहंदी लगाने के बाद भी उसमें मुझे 1 hour 15 minutes लग गए एंड नाउ आई एम रियली टायर्ड, माई बैक इज़ हर्टिंग अ लॉट एंड नाउ आई कैन नॉट स्टडी, लाइक आई कैन नॉट स्टडी. सो अब मैं सोने जा रही हूँ एंड आई एम सो सॉरी आई कुड नॉट फिनिश दिस चैलेंज. Do subscribe to my channel if you haven't already and like this video. I'm so sorry if I'm not energetic because I'm really tired right now. I love you always. Also follow me on Instagram because I upload exclusive content over there. Anyways, bye bye.